Yes, good morning everybody. So आज कौन सा दिन हुआ? 15th, 16th? I don't even remember. Day 16 है क्या? I will just check. So I was discussing just now with Shyam that sometimes he said that I am improving day by day. What I am trying to tell everybody is, and that's my experience of yesterday, when you are in a very high vibrations and you feel very happy about anything, and then you get a call from somebody and he's talking to you normally, but even then after the call you would realize that वैसा नहीं फील कर रहा जैसे मैं अभी कर रही थी. कुछ भी बात नहीं हुई है आपकी, कुछ भी नहीं हुआ उससे, then you realize no, her energy was such that आपकी एनर्जी अपने आप ही लो पे आ गई है. So the lesson yesterday I took with my own learning is when you are feeling very happy, spend time more with yourself than with the world. होता क्या है, जब हम खुश होते हैं ना तो हम लोगों से बात करना चाहते हैं. We want to share, we want to talk more, but then you realize ultimately if you are happy, you are at peace. Enjoy that peace and peaceful and happy moment for yourself. मेरे को तो कल यही lesson, I'm telling my learning only yesterday. So for the last 2 days my vibrations were very high because I told you I was organizing everything and everything went off so well, and I was keeping my energies high. I was chanting, I was doing everything. But then yesterday afternoon I was speaking to somebody, and then I realized suddenly what happened to my energies. मुझे बात करके भी मजा नहीं आ रहा था, but for the heck of talking I was talking to the other person. मजा थोड़ी ना आ रहा था मुझे. But then after that I realized अरे वो energies ही नहीं है. That happiness is withered in a minute. So moral of the story for me is when be with yourself more than with the world, because they are going to snatch your happiness. Energy है ना, it will work unconsciously, पता भी नहीं पड़ेगा. How many of you agree with that? Yogesh, what do you have to add to it? And I would thank you, Yogesh, that you have done something for Suzanne. The other day you gave this thing opinion. मैंने सुजैन से पूछा कि आपका झगड़ा तो नहीं होता ना आपके हस्बैंड से? तो बोली नहीं, अब हम डिस्कस करके करते हैं. पहले इसको शिकायत क्या रहती थी कि मैं खर्चा करती हूँ तो टोकते रहते हैं. So then you gave her the suggestion, always discuss. दोनों बात करके करो. Unmute yourself, Yogesh. Yes, Suzanne, just Suzanne. Okay, she's not there. So that's what she shared with me yesterday. मैं कहा अभी ठीक हो गया? बोले हाँ. The other day Yogesh told me कि आप discuss. It's so simple. It's not a big advice, but if a small thought can change your life, छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है. बड़ी बातें नहीं चाहिए. हम लड़े जा रहे हैं आपस में. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पर अगर हमने एक ही थॉट बदल दिया, किसी ने रोशनी डाल दी उसके ऊपर कि तुम डिस्कस करके करो ना, तो वो ब्लेम करना भी बंद कर देंगे, वो सब करना बंद कर देंगे. आप डिस्कस नहीं करें, आप अपने आप डिसीजन लेते हो. व्हेन देयर इज अ टीम वर्क, देयर इज लेस टू ब्लेम. अगर आप अकेले करके और अपना नाम चाहते हो ना, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. इंस्टेड ऑफ आई बी सेइंग वी हैव डन दैट. सो जिन लोगों को खुद को क्रेडिट लेने की आदत होती है ना, तो बुराई भी सहने लगते हैं. Because then everybody's pointing finger there. So thanks, Yogesh, for your opinion to Suzanne. That was a good. Yeah. How we can change people's life with one sentence. You brought so much of difference in Suzanne's life, है ना? Thank you, ma'am. आ रही समझ में बात? Yes, ma'am. So I was telling now. You were saying that you agree with it. How do you agree with it? Yeah, Yogesh, I'm asking you. हाँ, yes, ma'am. अब कि अगर हम बहुत हाई हैप्पी होते हैं, बहुत हाई नोट पे होते हैं, तो इट इज बेटर टू बी योरसेल्फ एंड एंजॉय दैट मोमेंट देन टू बी विद समबडी एल्स, बिकॉज इट विल टेक अ मिनट कि वो आपकी एनर्जीज नीचे आएंगे. आप बताओ कैसे, हाउ डज इट वर्क? हाँ, मतलब अगर किसी के साथ बैठे हैं, कोई अच्छी बात हो गई तो ठीक है. इनकेस अगर उसने कुछ पिन पॉइंट कर दिया, कुछ बुरी बात हो गई, तो फिर कुछ डिस्कशन में चले गए, आर्ग्यूमेंट में चले गए, तो एनर्जी जा सकती है. एंड व्हेन यू आर वेरी मतलब इन अ हायर वाइब्रेशन, तो इट इज़ गुड कि तुम अकेले बैठो और अपना विजुअलाइजेशन में करो, चैंटिंग में करो. आई थिंक वो आपको 10x 5x 10x आपको बेनिफिट देता है, रादर देन किसी के साथ बैठने से. देता है ना, क्योंकि जब क्यों काम करती है हमारी चैंटिंग उस समय, क्योंकि हम हायर वाइब्रेशंस पे हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाएगी चीजें हमारी. स्नेहा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
And that's why I tell, listen to nice music. अगर कुछ नहीं करना ना तो अच्छे गाने सुनो. Nice music. So music is a therapy too. Music heals us, है ना? म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो हम जल्दी से अच्छा लगता है हमें. जिस जिस म्यूजिक से हम कनेक्टेड होते हैं हमें अच्छा लगने लगता है. सो बेस्ट थिंग इज द अदर डे व्हेन आई जस्ट abruptly I ended the session the other day. So when Shyam was saying yesterday, I didn't get the point you were trying to convey. Was that only we were very on the high note and I did not want to get into all that note कि हम बात कर रहे हैं क्या रहा क्या नहीं रहा और फिर हम नीचे आए. Immediately get engrossed in your work, be with yourself the way you want to be, so that we maintain that. And yesterday I really literally felt that. I said I created that for 1.5 minutes. In a minute it went off. And in a minute it went off and I thought she must have gotten the energies. वो तो लेके लो थी इसलिए तो आई वो आपके पास बात करने को. और वो एनर्जी आपकी सक करके चलेगी. देयर आर एनर्जी सकर्स, वैम्पायर्स होते हैं इस फील्ड में. you can go through the internet and read the term vampires. They take their energy away, they suck their energies away, your energies away. ले जाते हैं, आपको पता ही नहीं पड़ता आप क्या हो गया. आपको आपका मूड बहुत अच्छा था तभी तो कहते हैं जब आप इन सेशंस में होते हो तो there are chances that you absorb so much of negativity. If you are not स्ट्रॉन्ग एनफ, आप अपने आप को डिटैच करके अगर बात नहीं करोगे तो आप इफेक्टेड हो जाओगे इमोशनल किसी न किसी से. सो यू शुड नॉट बी अ स्पंज. सबके लिए स्पंज जो एम्पैथ होते हैं ना, एम्पैथी करते हैं, ज्यादा एम्पैथाइज करते हैं. एम्पैथाइज करो लेकिन उसको अपने जीवन में ऐसे मत उतार लो कि हो गया हम भी उसके साथ डिस्टर्ब हो गए. रोने लग जाते हैं लोग अपनी मैं अगर मुझे कोई कहानी सुना रहा है मैं भी साथ में रोने लग जाऊंगी तो व्हाट एम आई डूइंग. होता है ऐसे. I've seen many people. है ना? So today the point is, Suzanne, I was thanking on your behalf to Yogesh that his one sentence changed your life. Can you give a gratitude to him? Suzanne, तुम्हारे मुंह से. Open, unmute yourself. Unmute. Thank you, Yogesh. How did you make he made your life change? क्या ना वैसे बात करेगा तो अभी झगड़ा नहीं होता है. सिंपल, छोटी सी बात थी एंड शी केम टू द वर्कशॉप. इसीलिए इतनी डिस्टर्ब हो जाती थी कि मेरे हस्बैंड में पैसा मैं कमाती हूँ, मैं खर्च करती हूँ तो हमारा झगड़ा हो जाता है. सो एंड वन सजेशन ही गेव कि आप बात करके करो ना काम, इशू ही खत्म. किसको पॉइंट आउट करना. बट दीज सिंपल्स आर मिसिंग इन आवर लाइफ एक्चुअली, है ना? यस योगेश, तो आवाज जो नहीं आ खर्चा रही. यू हाँ, जो खर्चा है ना वो पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है. इम्पोर्टेंस है कि आप अपना वैल्यू कितना करते हो अपने रिलेशनशिप को. तो इफ़ यू आस्क योर हस्बैंड और योर स्पाउस कि यार मैं इतना खर्चा करूँगा ये करूँगा तो आई थिंक ही विल बी और शी विल बी फाइन. बट अगर आप पूछ रहे हो तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो रिस्पेक्ट है. अदरवाइज पैसे का के लिए कोई मना नहीं करेगा वैसे. तो दैट इज़ वाई जब सुजन जी ने बोला ना तो मैं बोला एक बार आप कंसल्ट करके कर लिया करो. वो मना रेस्पेक्ट का कोई कमी नहीं है. मैं रेस्पेक्ट करती हूँ लेकिन जब मेरे अंदर एक घमंड घमंड था. मेरे आवाज जरा तेज. आई वांट टू लिसन टू दैट ईगो. मेरे अंदर एक घमंड था. मैं कमाती हूँ तो मैं किससे पूछूं. मैं आपको मेरा स्टोरी बताता हूँ. मैं बिजनेस करता हूँ, मेरी वाइफ वर्किंग है, वो योगेश आप अच्छी सी जगह बैठो. वी वुड लाइक टू हियर एवरीबॉडी सो दैट आई कैन टेक मनी कन्वर्सेशन. थोड़ी अच्छी जगह लाउडली. वी आर नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली. अभी सुनाई दे रहा है? एवरीबॉडी कैन हियर हिम. सुनाई दे रहा है? यस. हाँ, तो मेरा बिजनेस है और मेरी वाइफ वर्किंग है. तो उसको कुछ भी लेना होता है ना तो वो मेरे से पूछती है कि मैं ये ले लूँ क्या. मैं बोलता हूँ यार तेरे को पूछने की क्या जरूरत है, तेरे को अगर कोई चीज पसंद आ महंगी तुम ले लो. तो मेरे लिए मतलब वो पैसे का इम्पोर्टेंस ज्यादा नहीं है, बट वो पूछती है, वो मेरे को रिस्पेक्ट देती है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ये है ना, ये चीज मतलब ईगो पे आ जाती है कभी कि यार मैं वर्किंग हूँ और मैं क्यों पूछूं. तो ये थोड़ा कर देता है. नो ऑफेंड टू एनीवन, बट वो सब डिफरेंस क्रिएट कर देता है. इसके लिए मैं आपको सजेस्ट किया कि अगर आप पूछ के करोगे सो मना नहीं करेगा हाँ कोई, बट वैसा है. ठीक है सुजैन. सो दिस स्मॉल डिफरेंस. बट प्रॉब्लम कहाँ थी? ईगो मेरी थी.
and we were pointing to other person, है ना? So कई जगह ईगो रखने से फायदा कभी भी नहीं होता है, नुकसान होता है. And here now we are talking about money frequency. So in so many days of working, and I've seen the questions are also coming down of everybody. Questions है ही नहीं किसी के. Even Sham is not speaking these days. Mamani, Mukta, कोई बोल ही नहीं रहा. जिसमें there are 33 in the group, but उसमें से कितने से लोग regular हैं और उसमें से बोलते भी नहीं है अभी, because now we all are settled and we are trying to work on ourselves more, understanding ourselves better. Once we understand अपना ये कि अगर मैं ego ला रही हूँ तो क्यों ला रही हूँ मैं? What do I want to prove to the other partner of mine? हाँ, क्या प्रूव करना चाह रही थी जब मैं ईगो लाके मैं कमा रही हूँ? लेट्स डिस्कस. इट्स नॉट पर्सनल पॉइंटिंग एट यू, इट कैन बेनिफिट मेनी ऑफ अस. आर यू कंफर्टेबल शेयरिंग एट योर होम राइट नाउ एट द राइट स्पेस? So why does this ego come? Suzanne? वो अब हम पैसे कमाते हो तो थोड़ा घमंड आता है ना. ऐसा क्यों होता है? ये नहीं मालूम. हाँ, ये आपका टास्क है. यू हैव टू फिगर आउट ऑन योर ओन. कीप अ हैंड ऑन योर दिस एंड आस्क योरसेल्फ, अगर ये मेरा ईगो है. एवरीबॉडी, वी विल कीप आवर हैंड ऑन द चेस्ट. यस श्याम. Yeah, madam. In my office, there were 8 ladies also working in my office, and some of them were earning, more than their husbands. Fine. So I could understand them that, they used to feel they are earning more, so they are not dependent on their husband. So their behavior was, different, to their families, to their, husband family. This is what I have observed, So I don't know whether you call it ego or whatever, but this comes, Okay, right. So if it is normal, but if we are struggling at the level of companionship, है ना? तो ये चीज हम वही तो कर रहे हैं जो इतने साल से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी करती थी कि देवर अपर हैंड, देवर रनिंग. सो वी आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग, राइट? कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं, बट दिस हैज टू बी शेड. ईगो को कहीं साइड में रखना पड़ेगा टू हैव अ हैप्पी लाइफ. अल्टीमेटली यू आर लुकिंग फॉर अ हैप्पी पार्टनरशिप at a place. At the end of the day, when you are together, you have, having a good time together, then showing off that I am better than you or you are whatever it is. So keep hand on yourself. Anjali, you joined me late. आप अपने ऊपर हाथ रखोगे. Keep hand on your chest. I'm asking you to do an exercise. Please keep hand. रिचा तू भी रखेगी, है ना? Because you're dependent on your brother. So कहीं ना कहीं वो you feel lesser or more. I don't know. अपना हाथ यहाँ रखेंगे. Take a deep breath in, breathe in and breathe out. Take a deep breath in, breathe in and breathe out. आप एक एरिया डिफाइन करें लाइफ का, एवरीबॉडी, जहां आपका ईगो बीच में आ जाता है. और जो नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ को. Just try to figure out. I'm giving you a minute. Just get connected to yourself.
Try to figure out. If you have identified your area of ego where you are getting where your life gets negatively impacted, you can raise your hand. Yeah, Anjali. Unmute yourself. Yes, ma'am. Where the ego is getting negatively impacting your growth, your personal life, your professional life, whatever it is. Ma'am, it is only with, I feel, my co-sister, because that's the only area which I feel, I have some amount of negativity. Because when I got married initially, I had a very beautiful relationship with her. But eventually, धीरे धीरे, I don't know what happened. And हमारे बीच में वो, we started drifting away. इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है that my mother-in-law's emotions towards both of us, it contributed, because I could see her loving me more than my co-sister, and she is elder to me. My co-sister, वो 6 साल पहले मुझसे इस घर में आई थी, तो मुझे लगता है she must have felt bad that I'm stealing that love maybe from her. This is what I feel. Though इसमें मेरा कोई contribution नहीं है, ma'am. It happened. Okay, now hold. We will not go into the story. Now you say that this ego is coming in between. Yes. And this is, I asked the question, negatively आपकी life को expect कर रहा है आपका ego. Now you know आपका ego बीच में आ गया, आपकी life को negatively impact कर रहा है. ठीक है? This is one thing. Yes, Yogesh. We will get back to it. हाँ, आज इसी पे काम करेंगे. Yes, Yogesh. Do you have something to share? Anybody else? किसी ने कुछ फाइंड आउट किया? Yes. मेरे से तो कुछ नहीं, मतलब कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा था. Okay, fine. श्याम, आप? Anybody else? All are fine. No ego. मैं यही बोलूंगा कि जैसे I would say me and my wife are very different personalities. अभी करती हूँ वर्कशॉप के बाद. हाँ, करती हूँ. हाँ, yes, carry on. हाँ. Yeah, so in most of the things, I think that this is right, but she feels that no, this is other way is the right. So many times there are clashes, Ego कहाँ आता है इसमें? अब ego यही है कि what I have said should be the, मतलब I understand that is the right, नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि कौन सा एरिया आपकी लाइफ का है जहाँ ईगो आता है और आप उससे रिलेशनशिप नेगेटिविटी होती है. अंजलि ने नीचे बोला कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए लविंग थी, कहीं उसको नहीं मिला छोटी वाली को, तो वो फिर वो नेगेटिविटी आई, पर ईगो इसमें क्यों आ गया? फिर वी विल गेट बैक टू हर. जब सब कुछ अच्छा था, ईगो आना ही नहीं चाहिए था. ये चंदन. Sometimes it is like when we are talking to someone, I know everything, like, that attitude brings negativity. Like, I know everything. That is there. मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जब आपका सामने वाले से बात होती है तब आपका ईगो आ जाता है और आप ये कहते हो कि I know everything and you are like that only. Not that way, like I come in between, like you are superior this I know. It is like this I know. Sham is saying
दैट जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो फिर थोड़ा सा क्लैश हो जाता है या कोल्ड वॉर होती होगी, बातचीत बंद हो जाती होगी. दिस इज द वे वी कपल बिहेव, यू नो, एवरीबडी इज अ मैच्योर पर्सन हियर, सो वी नो नथिंग टू हाइड एंड से. तो हम बात करना बंद कर देते हैं या हमें लगता है हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी गई. बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? At the cost of the relationship which is very important to us. चंदन, if we say, अगर हम यही किसी की ईगो बढ़ा दें, ठीक है यार, you are doing good, great, how does it impact us? कुछ नहीं फर्क पड़ना है. जिसको जो चाहिए वो दे दो, क्या फर्क पड़ता है? अंबानी क्या करते हैं? जियो चाहिए ये ले लो, जो चाहिए वो चाहिए, क्या करना है? जिसको जो चाहिए वो दे दो, आप खुश. So, Sham, you wanted to say that point of view, when it doesn't match, then what do you feel? That you know better than her? Yeah, you are more experienced. Yeah, you have seen the world more. Yeah, you're more qualified, more educated. What is the psychology behind? It's going to be really interesting, and we will tap out this blockage also in the money growth. Yes. Well, madam, when two persons are different and when they talk, you know, and they don't match with that thing, so I think there what, you know, you feel that you are, I mean, there the ego comes, you know. Why, when I am saying this, why I mean another person is not accepting that? Because you feel that you are right. Okay? This is the notion, but the other person is saying, no, I won't accept that. So there, I think, you know, that clash is where the ego comes, you know. You get, I mean, you don't like it and you. So for you how say, many years of your married life this thing has been going on? Ever since you got married? Huh? आपके जीवन में कितने सालों से चल रहा है? जब से आपकी शादी हुई तब से चल रहा है ये? I say, yeah. या पोस्ट रिटायरमेंट आपको ज्यादा लगने लगा? उसके पहले तो आप बिजी थे, अब आप सब देख रहे हो ध्यान से. उससे पहले तो फैमिली की तरफ ध्यान ही नहीं था. सडनली यू रियलाइज, ओह आई एम सो इम्पोर्टेंट. सो क्या है मतलब? लेट्स यू नो, हम जब तक डायसेक्शन नहीं करेंगे ना, हम अपने आप को शांत करने के लिए बैठे हैं, अपने आप को वो करने के लिए, टू रेज आवर फ्रीक्वेंसीज. अगर ईगो ने हमें रोक लिया तो वो एक ब्लॉक बन जाएगा बड़ा. No, madam, it was from the very beginning, but I would say when you grow older and older, you know, you become more rigid to your notions, you know, to your thinking, and so probably that problem comes more frequently than now, in the earlier days. Yeah. Yes, now you are lonely. You feel lonely. You are not lonely, you feel lonely from within. Agree to it, you said the first day. आपने first day यही बोला था. नहीं, madam, see, I see that she has also very good qualities and all that, which I नहीं, really आप उसको कवर understand. मत करो. अभी वो अच्छी है, मैं यही नहीं कि हम तो मान के ही चल रहे हैं. Her opinion is also right. We are not saying, but I am asking you, do you feel complete? Do you enjoy the companionship? Do you, because I say there are 4 pillars of life. Money, career and relationship की बात हो रही है अभी. My ego आ रहा है. Okay. Yeah. No, that loneliness is there, definitely. Yes. And just clap for him that he is agreeing to it. जब हम accept कर लेते हैं, then the changes start. So that loneliness is there because my ego, my point of view is more important than my loneliness. Right? No. What you said, madam? मैंने बोला मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी बात मानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें सफर होंगी तो हो जाएंगी. बट सुजैन हैज डन अ गुड जॉब. उसने फटाफट जैसे उसे ओपिनियन मिला, शी अप्लाइड टू इट कि नहीं मैं राय लेके करूंगी कि मैं ये खर्चा कर दूं, आज थिंग्स आर सॉर्टेड. शी स्टार्टेड टेकिंग द ओपिनियन. जैसे इतना सा शिफ्ट लेके आई है वो अंदर. बट शाम नाउ हाँ
मैम वो पूछने से प्यार भी बढ़ता है। ये देखो, अब शी इज हैप्पी, एंड अगर एक इंसान इस वर्कशॉप से हैप्पी होके चला जाता है, सो एवरीबॉडी विल बी सो हैप्पी, एंड स्पेशली योगेश को लगेगा आई हैव जॉब, किसी की लाइफ में मैं खुशियां ले आया। तो श्याम, या सी नाउ द थिंग इज, आप में नाउ लेट अस tell him something. He is flexible. He says ना, एक एज के बाद मेरी एज बढ़ जाती है, but he is not that. He is flexible, and I am proudly saying that he is very flexible. First of all, he being here is the first thing कि आप यहाँ पे बैठ के अपने आप को ओपनली अपनी चीजें बता रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, और आप कह रहे हो मेरे अंदर चेंज आ रहा है, इट मीन्स यू आर फ्लेक्सिबल श्याम। तो यू आर फ्लेक्सिबल, ठीक है? सो ये आप अपने माइंड में बार कर लो, आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम फ्लेक्सिबल। जो फ्लेक्सिबल होता है, इट इज माय थिंकिंग, आई डोंट नो, मुझे लगता है फ्लेक्सिबल माइंड लीड्स टू फ्लेक्सिबल बॉडी। जब योगा करते हैं है ना, तो मुझे लगता है कि जब आप जितना फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल बॉडी लीड्स टू फ्लेक्सिबल माइंड, वाइस वर्सा, आई थिंक सो। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल माइंड जिनका होता है ना, वो रिजिड नहीं होते, और उनके आर्थराइटिस भी नहीं होगा। जिनके आर्थराइटिस होता है ना, ये सब अकड़ जाती है, हड्डियां पड्डियां सब चूचा करती है। नहीं मैडम, अब है ऐसा कि आई एम बिकमिंग मोर एक्सेप्टेबल, मेरी बढ़ गई है। मैं मतलब आई डोंट आर्ग्यू ऑन दैट, आई जस्ट ओके, इट्स ओके, ओके। एक जैनिज्म का एक सिद्धांत है, जैनिज्म का, हाँ, लिसन टू मी, एक जैनिज्म का सिद्धांत, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद का सिद्धांत है कि आप भी करेक्ट है और मैं भी सही हूँ। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही होंगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, दोनों सही है। लेकिन हम जब एक लेवल पे आके डिस्कस करते हैं, दैट कॉन्वर्सेशन पार्ट इज मिसिंग, वी आर ट्राइंग टू प्रूव दैट यस आई एम राइट, यू आर राइट, एंड देन दैट लोनलीनेस क्रीप्स इन. So instead of proving yourself, myself right, there should be a conversation, and which is difficult. That's what I'm saying from the day one. कि बात कर लो, आपने बोला था ना श्याम, बात करके, who told me the other day कि बात करके खत्म हो जाती, किसने बोला था? मैंने ही बोला। हाँ, पर होती नहीं ना, आप ही के साथ नहीं हो रही है। बात करने से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है। सो इट इज इजियर सेड देन डन, बट इट इज डिफिकल्ट, पर हम कर रहे हैं ऑलरेडी। नाउ वी विल टैप ऑन इट। यस, तुम बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज इसी पे करेंगे, और ऑनेस्टली अपने आप से कनेक्ट हो जाइएगा। यस, स्नेहा, स्नेहा, शी इज गॉन नाउ। इतनी देर से हाथ रेज कर रही थी। एनीबडी एल्स वांट टू से समथिंग? ईगो का आता है? अनु, आपका आता है ईगो? नहीं, मेरा तो नहीं आता। ठीक है। एनीबडी? मुमानी? ये तो हंसती रहती है बस चुपचाप, नो कमेंट्स, है ना, बी सेफ। रिचा? मैम ईगो तो नहीं, पर मैं ना थोड़ी जिद्दी हूँ। ईगो नहीं रहता, पर मैं ना जैसे अड़ जाती हूँ कि नहीं मुझे ये करना है या मुझे नहीं करना है, ईगो और तो मैं जिद उस में पर क्या अड़ी। फर्क होता है? कैन यू डिफाइन ईगो एंड जिद में क्या फर्क होता है? मैम ईगो जैसे ऐसा रहता है ना कि जैसे मैं जिद्दी हूँ, ईगो जैसे हर्ट हो जाता है कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया या कर दिया, या सबके सामने बैठ के आपको कुछ गलत बोल रहे हैं, उस टाइप से मेरे को लगता है वो ईगो होता है। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, मैं जैसे जिद्दी हूँ कि मुझे ये चीज लेनी है, मुझे ये काम करना है या मुझे नहीं करना है, तो मैं उस पर अड़ी रहती हूँ। तो वही तो हो गया। तो अभी वी विल गेट। हाँ स्नेहा, यू वर सेइंग समथिंग, यू वर रेजिंग योर हैंड। सर मैम, ईगो का बात चल रहा था, तो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ईगो की बात कर रही थी। उसको कोई कैसे बात नहीं, वो तो कहीं भी अप्लाई होगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, कहीं। तो उसमें कैसे अप्लाई होगा? क्योंकि बिकॉज जैसे कोई भी आता है तो ठीक है, नया कोई आया या एक्सपीरियंस्ड है, तो हमारा सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस हो रहा है, तो अपना अपना ओपिनियन लेके सब बैठे रहते हैं। ये काइंड ऑफ थोड़ा सा ज्वेलसी है, वो भी आ जाता है, कंपैरिजन वाला। तो वो भी चीजें हैं। तो अभी एक्चुअली करेंटली चल ही रहा है वो मेरे साथ।
हाँ, we will work on that. Now understand, ये हम अलग कर दें ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को अलग कर दें, वहां भी लोग हैं, यहाँ भी लोग हैं, है ना? So if we keep that as another family, this another family, अगर यहीं देवरानी जेठानी आ गई, फॉर दैट रीजन बहनों में भी, सिबलिंग्स में भी राइवलरी स्टार्ट हो जाती है. सो वी विल नॉट से दिस इज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड और दिस इज माय फैमिली लाइफ. हमारा ह्यूमन बिहेवियर सेम रहता है सारी जगह, है ना? एप्रिसिएशन एवरीबडी एंजॉयज, और जिसकी एप्रिसिएशन नहीं होगी दूसरे को बुरा लगेगा. अंजलि राइट? यही होता है ना? हाँ. सो लेट्स स्टार्ट टैपिंग, उसके बाद हम मनी पे आ जाएंगे. इवन दो मैम थोड़ा सा आप हिंदी में भी बोलेंगे? हाँ, मैं बोलती हूँ. वो हाँ. आप ना एकदम बोलते तो कुछ कुछ वर्ड्स मेरे छूट जाते हैं, तो एक मैं आध बोल बार आप. मैं बोलती हूँ रिचा. हाँ, मैं हाँ. बोलती हूँ. ठीक है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. इवन दो मैं सबके साथ मिलके चलती हूँ, मैं सबकी बातों का रिस्पेक्ट करती हूँ या करता हूँ, पर अगर मेरी बात नहीं मानी जाती, समझी जाती, तो मेरे अंदर ईगो आ जाता है या मैं जिद्दी करने लग जाती हूँ, और इससे मेरा ही नुकसान होता है. फिर भी मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ. Still I love and accept myself deeply and completely and wholly, और मैं अपने आप को माफ करती हूँ. Even though, यद्यपि ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. ईगो से मेरा भला कभी नहीं हुआ है. या तो मैं ईगो को रख लूं या अपने रिश्तों को बचा लूं, पर मुझे ईगो इम्पोर्टेंट लगता है और मेरे रिश्ते खराब हो जाते हैं. फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ. स्टिल आई लव माई सेल्फ डीपली एंड कम्प्लीटली एंड होली. इवन दो ईगो मेरा मनी के साथ भी आता है. जब पैसे की बात आती तो मेरे अंदर ईगो आ जाता है. अगर मैं पैसा ज़्यादा कमाता हूँ या कमाती हूँ तो मैं अपने आप को वर्दी समझने लग जाती हूँ, लगता हूँ, और इससे मेरे रिलेशनशिप स्ट्रेन होते हैं, मनी से भी स्ट्रेन होते हैं, क्योंकि मैं उस हिसाब से स्पेंड करती हूँ या नहीं करती हूँ. एंड स्टिल आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ डीपली एंड कम्प्लीटली. आईब्रो पॉइंट. ये मेरा ईगो पैसे को लेके, ये मेरा ईगो मेरे ओपिनियन को लेके मेरी चीज़ें खराब कर देता है. साइड कॉर्नर ऑफ योर आईज. ये मेरा ईगो पैसे को लेके, ये मेरा ईगो मनी को लेके, ये मेरा ईगो रिलेशनशिप में, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ऊपर रखना चाहती हूँ, रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ. मेरा रिलेशनशिप किसी के साथ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और ये रिलेशनशिप मेरा खराब कर देता है. अंडर द आई मेरा ईगो मेरे रिलेशनशिप को खराब करता है. अंडर द नोज मेरा ईगो मेरे रिलेशनशिप, चाहे मनी से हो चाहे हमारे लोगों से हो, सबसे खराब हो जाता है. अंडर द लिप्स मेरा ईगो सबसे ऊपर, और ये कहने से मेरी सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं. ऑन द कॉलर बोन मेरा ईगो मेरे रिलेशनशिप को खराब कर देते हैं, और मैं फिर अकेला का अकेला महसूस करती हूँ या करता हूँ, जबकि मैं चाहती हूँ कि मैं सबके साथ मिलजुल के रहूँ, सब मुझे अप्रिशिएट करें. बट जब ईगो की बात आती तो मुझे अपनी बात ऊपर रखनी होती है, और वही मेरा ईगो है. अंडर द राम्स मेरा ईगो हर जगह आ जाता है, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मेरा हस्बैंड हो, चाहे मेरे ऑफिस के कलीग्स हो या ऑफिस के कुछ भी लोग हो, कहीं भी हो, मेरा ईगो सबसे ऊपर रहता है, और ईगो ही मेरे अंदर नेगेटिविटी लेके आता है. सिर के ऊपर है मेरा ईगो, माय ईगो. Take a deep breath in, breathe in and breathe out, and feel the vibrations, and feel that the vibrations of आपकी ईगो वाली वाइब्रेशंस बाहर निकल रही हैं. यस श्याम, हैवीनेस लगी है, क्या लगी?
Yeah, madam. No, madam, I would say that I am most adjustable and most flexible person. Okay, but I would at the same time I would say that a flexibility is also a limit, right? So I mean, you cannot stretch rubber band up to a level only. Not if you pull it more, it may break also. So that is why my point is, it is Okay. not that I am not flexible. No, here I try to understand. We are talking about ego. Ego kahan aati hai? It is not about flexibility. See, understand this point. अगर आपको लग रहा है आप पूरी लाइफ एडजस्ट करते आए हो, कोऑपरेट करते हुए आए हो, अब आपका जो रबर बैंड है वो इतना खिंच गया है, अब इसमें इससे ज़्यादा तो इतना तो बड़ा होगा नहीं ना, इतना था, इतना हो गया, इतना तो होगा नहीं, उसकी उतनी भी कैपेसिटी है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ ईगो की, फ्लेक्सिबिलिटी की नहीं। उसमें ईगो क्यों आया? ईगो का मतलब अलग है, ईगो का मतलब हो गया अलग, और जो आप कह रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं कि अब ईगो नहीं आना चाहिए कि मैं आई कीप माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम फर्म अबाउट इट, बट ईगो नहीं है वो, दैट्स नॉट ईगो, ईगो इज समथिंग एल्स। Who would explain what ego is? Who would explain here? Shyam is little confused in these 2 points. Ma'am, to Anjali, my yeah. understanding, it is I, me, myself. Or You are keeping yourself, ahead of almost everything, all the aspects, all the areas of your life. It is just regarding you. okay. And Yogesh, what is ego to you? What is ego to you? मैम मेरे को लगता है कि जब भी when you feel you are right and you dominate the other person thinking or behavior, so I think that is ego. I am always right, I know, I have experience and everything like this. The dominating nature is, I think, is maybe called the ego like. Okay. Anybody else? कौन बोलेगा? डिम्पल, what is ego? जो श्याम बोल रहे हैं वो ईगो है, वो एडजस्टेबिलिटी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पे he comes up with maximum questions, so I have to discuss that only. So yes, what is that? मैम मेरे हिसाब से ईगो क्या होता है, एक स्टेप किसी से आगे रहते हैं ना हम, तो अपने आप में एक घमंड आ जाता है, मैं होशियार हूँ, मुझे आता है सब करना, और किसी के सामने वाले की बात नहीं रखते हम, अपने को ही प्रूफ करते कोई मैं ही सही हूँ, मेरे हिसाब से वो ईगो है। और जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आती है उसको बोलते हैं कि एडजस्टमेंट करना, किसी भी क्या करना? कोई भी एडजस्टमेंट, ओके। आई फील पर्सनली, क्योंकि कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आई तो हाँ ठीक है, इसको मैं एडजस्ट करके ऐसे फ्लेक्सिबल हो जाना कोई भी बात को लेके। ओके, सो श्याम, व्हाट डू यू से अबाउट इट? No, madam, but I have kept my point before you. Okay. And, Chalo. yeah, and so is everything clear about him that there is मेरा जो opinion है इनके बारे में that confusion है कुछ ना कुछ. He thinks everything about his life on his own, yet आपका जो ईगो वाला फैक्टर है ना कि मेरी बात ओपिनियन वैल्यू नहीं करती है और हमारे क्लैशेस होते हैं, ठीक है, ये क्लैशेस होते हैं या ठीक है, आई मीन देयर इज कोल्ड वॉर और शी हैज गिवन अप और यू हैव गिवन अप, जो भी है, क्या सिचुएशन, एंड देन व्हाई डू यू फील लोनली? व्हाई डू यू फील लोनली? यस योगेश। मैम मेरे को लगता है कि ईगो में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, जैसे when we know that कि other person is right but still we want to convince him or her on my point, उसको जानबूझ के डोमिनेट करना, नहीं I am the better and I am the superior, तो I think वो एक ईगो का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। ठीक है,
तो शाम अभी जब हमने चैंटिंग टैपिंग करी उसमें क्या समझ आया? कुछ एनर्जीज फील हुई अभी? हैवीनेस हुई, लाइटनेस हुई, या कनेक्ट ही नहीं हुए हम उससे? हाँ मैडम, हुआ किया कल मैंने, आपने अभी 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 राइट नाउ? नहीं, अभी एकदम ऐसा तो कुछ मालूम नहीं पड़ा था हाँ, ऐसा कनेक्ट कुछ। कनेक्ट कोई नहीं हुआ ना इससे? इस टैपिंग राउंड से कोई कनेक्ट हुआ? हाँ, क्या चीज हम लेंगे यहाँ पे कि हम कनेक्ट हो जाएं फटाफट? क्या चीज मिसिंग थी इसमें? अंजलि, कैन यू पिन पॉइंट? Ma'am, basically, we must respect the viewpoint of the other person, and we should take responsibility of our actions. And हमें judgmental नहीं होना चाहिए. Everybody is right अपने perspective के साथ. हम बोलते Basically, तो हैं respect पर होना ऐसा चाहिए. हाँ होता तो नहीं है, yes. हाँ, है ना? तो let's start that without being judgmental about anybody. We are, Sham, we are not getting personal about you, nothing to hurt you. Just remember, एक आप पॉइंट ऑफ व्यू लाते हो, वो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर देता है. कोई बोल देता है, कोई नहीं बोलता है, पर एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा ज्यादा हम सब इसी से डील कर रहे होते हैं, है ना? आप बोल देते हैं, बाकी लोग बोलते नहीं है, कनेक्ट कर रहे होते हैं. सो थैंक यू फॉर बीइंग showing your opinion here. So let's start tapping from the eyebrows. This ego, this ego, this ego, corner of your eye, this ego under the nose, this ego under the lips, this ego on the collarbone, this ego, this ego, this ego on the head, this ego. Take a deep breath in and just see where do we stand, and from inside the eye. If I give up on my ego, my life will be much better. Actually, I want companionship. I want togetherness. I want to be heard. Corner of your eyes. If I get everything by just giving priority to the other person, and if I have given so much of my to the other person, मैंने अगर बहुत कुछ फ्लेक्सिबल होके करा है दूसरे इंसान के लिए और मुझे वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं अपने अंदर बहुत सारे हर्ट लेके बैठा हूं. एंड आई एम कंफ्यूज्ड कि मुझे क्या करना चाहिए. अल्टीमेटली गिविंग अप इज ऑल्सो नॉट हेल्पिंग, and also being so flexible never helped. I release these negative thoughts from myself. मैं अपने इन नकारात्मक विचारों को ही छोड़ सकता हूं और मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, ताकि मैं खुद के साथ दोस्त बन सकूं, अपना खुद का. मैं खुद को समझ सकूं. आईब्रो पॉइंट. जब मैं खुद को समझ जाऊंगा कि मेरी क्या नीड है, जब मैं 5 मिनट अपने बिहेवियर पे, अपनी लाइफ के पास्ट में जाके देखूंगा कि मैंने क्या किया और क्या कर सकता हूं, नाक के अंडर द नोज, सो दैट्स द डे योर गोल्डन सनराइज हैपेंस. अंडर द लिप्स, आई एम रेडी फॉर दिस गोल्डन सनराइज. And this golden sunrise on the collarbone is showing me a new light and healing my past completely so that I can start afresh. On the eyebrow point, it is never too late, because golden sunrise is healing me. क्योंकि golden sunrise मुझे heal कर रहा है नाक के नीचे, मुझे आगे बढ़ा रहा है, मुझे नई रोशनी दे रहा है, नई दिशा दे रहा है, और मैं तैयार हूँ हील होने को, बिकॉज मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ.
अपने आप को स्वीकार करता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ हूँ और मैं डिजर्व करता हूँ अपने आप को अप्रिशिएट करना कि मैंने पहला कदम लिया अपनी लाइफ में। एक पुराने तरीके से बढ़कर मैंने जो पाया उससे ज्यादा मैं पाना चाहता हूँ। तो आई एम रेडी टू वॉक ऑन द न्यू पाथ with my ego coming down, letting go of my ego because it has never helped me. It has only come in my way of happiness. Take a deep breath in and release. If somebody wants to say something, one person can say जिसको कुछ ज्यादा लग रहा है, हम अभी आगे फटाफट खत्म करेंगे. Anybody? थैंक यू बोलूंगा मैं आपको ये कराने के लिए. What happened? नहीं ना, अच्छा लगा, पर मैं थोड़ा ये बोलना चाहूंगा मैडम कि आप जो मेरी बात का वो बोल रहे हो ईगो है, somehow I differ in that. No problem. Everybody has an opinion. Could be, yes. Please say. So मैं ये बोलना चाहता हूँ कि it is not exactly ego. It is, a different way of thinking of two people, and they clash in that. But I don't think it's a ego. It's not ego. It is fine. that It's fine. अगर आपको ऐसा लगता है कि it's only difference of opinion, again it is fine. But the main contention here is हम ये चाहते हैं कि अगर difference of opinion है और हम अनहैप्पी फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस का रिलेशनशिप के ये 4 पैर में से एक पैर नीचे है, तो वो बैलेंस लाइफ नहीं रहेगी. दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर हम सामने वाला उतना वो नहीं है तो हम क्या करें कि हमारी खुद की दिस इज मी. यहाँ तो ईगो मेरा ही है ना. ईगो मतलब दिस इज मी. आई एम टॉकिंग अबाउट यू आर हियर फॉर योरसेल्फ. यू कांट चेंज योर वाइफ. जो सुजैन ने काम किया उसने किया. उसके हस्बैंड तो जैसे टोकते थे वैसे ही टोकते थे, और सुजैन ने एक स्टेप लिया, पूछना शुरू किया, चीजें रिजॉल्व हो गई उसकी, है ना. क्योंकि वो सब कुछ अपने आप करती थी बिना पूछे, तो इनके घर में क्लैशेस होते थे. So now she has started taking opinion and she says कि see she booked a personal session. Let me tell you, मेरी तरफ से डिले हुआ. I lost the money. ठीक है, वो पैसे मेरे पास पड़े थे. She says मेरे को उसमें एनरोल कर दो आप EFT में. I lost the money, but I was happy कि इसने अपनी लाइफ. She gave me the money for the private session. I was not getting the time. I was not in zone to take a private session. Just because of 2 days delay, I lost the money. आपको पैसे देना, good. हुआ ना कल सुजैन ऐसा? My delay, I lost the money. यहाँ तो सॉर्ट आउट हो ही गई है बात करके, because she was ready to change. वो एक्सेप्ट कर रही थी इस चीज के लिए कि अब उसको जरूरत नहीं पड़ी. और आज वो कल मेरे पास एक कल कॉल और आया था किसी का. हेलमेन तियो हमने डाला था, पोस्ट किया था. So some lady called me up and she says मैंने इतने स्विच वर्ड्स यूज किए, मैंने इतना कुछ किया, पर the way हेलमेन तियो brought me everything. वो कोई नीतू कम्स ना सुबह आती है, तो आज आई नहीं. उसके वीडियो देख के she got so many results. बोले आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर, मैं सबको हील कर देती हूँ, लेकिन मेरी चीजें बहुत खराब थी. So it helped her out. Today she is not there. I would have told her. तो श्याम, you are absolutely correct. Don't think we are here कि आपको सही करने के लिए. It is your journey, your life. You have to realize, figure out from the past and the present moment where do we stand. That's a report card. अगर आप खुश हो अपने जीवन में तो ये आपका रिपोर्ट कार्ड है. We can have a facade in front of other people. That's okay. हर इंसान फसाड रखता है सामने. बहुत कम होते हैं अंदर और बाहर सेम होते हैं. दुनिया का फसाड अलग है कि नहीं है? कौन एग्री नहीं करता इस बात से? फसाड अलग है ना बाहर वालों के लिए. हाँ, व्हाट इज फसाड, डिम्पल? जो दिखता नहीं है, जैसे सामने कुछ और है, आज पीछे कुछ और है ना. मोस्टली ऐसे ही होता है. आप सोशल सेटअप में जाओ, किटी पार्टीज में जाओ, ऐसे ही दिखता है. दैट्स व्हाई आई डोंट गो टू किटी पार्टीज.
सब कुछ फेक होता है वहां पे, है ना। एक लेडी उठ के जाती है, सारे लग जाते हैं उसकी बात करने, दूसरे जाती है तो ऐसा, तो सॉल्व फसाड। बट हम यहाँ पे अपने आप से मिल रहे हैं। हाउ मच आर यू कनेक्टेड श्याम विद योर सेल्फ, योर इनर सेल्फ? कितना आप अपने आप को पहचान पाए हो, कितनी कमियां आप अपनी ढूंढ पाए हो? Yes, I would say काफी कुछ। है ना, बस हम वही हैं, हम दूसरे के लिए तो नहीं, हम दवाई तो हम खुद ही ले रहे हैं। एंड थैंक यू, इवन आई वर्क ऑन माई सेल्फ व्हेन यू आर सेइंग, एवरी डे आई एम सेइंग द सेम थिंग। अनु, व्हाट अबाउट यू? Yeah, I'm working also on myself a lot because I have separated myself from everybody, like from the time I started doing a lot of like switchboard and everything. And people just leave. I don't know, it's just all the negative people, they just drift away from me. And नहीं, अब मेरे को आप वैसे नहीं रहे ना, अभी उनकी गॉसिप मॉन्गर नहीं रहे ना, आप उनको कोई मसाला नहीं दे रहे हो, so ठीक now है। like they stop inviting me and everything, like जो भी हो, so that's what happens. एक कहावत है ना, But I don't feel bad anymore now, like you will be happy, yeah. you will be happy, So I don't even have long time and for you'll be them. happy. Yes, because now you will have substance within yourself. Now last round and then we will start chanting. Golden sunrise, golden sunrise. Taps on your eyebrow point. Golden, golden sunrise, golden sunrise, golden sunrise. On each of your point, golden sunrise, 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 golden sunrise. Visualize a beautiful you standing in the water of, किसी झरने के नीचे खड़े हो जाएं जाके आप लोग, इमेजिन करें आप एक झरने के नीचे हैं, गोल्डन सनराइज हो चुका है, सुंदर सा सूरज सामने आपके चमक रहा है, आपके राधा सिर के ऊपर चमक रहा है और आप एक झरने के नीचे हैं। झरने के पानी का बहाव इतना तेज है इस समय, इतना तेज है कि आपके हेड से वो नीचे सारे आपके थॉट्स पुराने वॉश आउट कर रहा है। जस्ट फील कनेक्टेड टू द वाटर, फील करिए उस पानी की ठंडक को। वो जो पानी आपके माथे पे, सिर पे गिर रहा है और आपके शरीर के एक एक कण को छू रहा है, तो आपके सेल्स आर वेरी हैप्पी, वो नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं अपने आप से, वो चार्ज अप हो गए हैं, दे आर सो हैप्पी। आपकी बॉडी में गूज बम्प्स आ रहे हैं, आपकी रोम रोम खिल रहा है। फील दैट वाइब्रेशन, यू आर स्टैंडिंग अंडर द रेन वाटर, अंडर द झरना, आप वाटरफॉल के नीचे खड़े हुए हैं, आपके सारे थॉट्स, आपकी सारी लर्निंग सब पानी के साथ बह के जा रही है, एंड यू आर फीलिंग सुपर चार्ज्ड। सबसे पहले इतना ठंडा पानी जब जा रहा है और आपको लग रहा है कि अगर मेरा पैर फिसला तो मैं वापस लौट के ही नहीं आऊंगा इस जीवन में, आपने अपने आप को संभालने की कोशिश करी। सबसे पहले किस चीज को संभाला आपने, और कौन सी चीज आपने छोड़ी कि अगले ही पल आप फिसल जाने वाले हैं और पता नहीं सागर की किस लहर में गुम हो जाएंगे, जहां आपको कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, ना आप स्वयं को ढूंढ पाएंगे। आप किस चीज को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जरा गौर से देखिए, इमेजिन करिए, फील करिए, विजुलाइज करिए। अगर पैर फिसला तो आप बहते हुए कहाँ चले जाएंगे, और आपका ये ईगो, आपकी ना जाने कितनी सारी भ्रांतियां खुद के बारे में कहाँ बह चली जाएंगी। फील करिए, महसूस करिए, ये आपकी लाइफ है। और आपने क्या चीज संभाल के रखी,
आपने क्या चीज संभाल के रखी? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो आपने संभाली। अगर वो ही चली जाती तो फिर जो चीजें आपके पास पड़ी हैं वो सब बेकार थी। आज जो उन बेकार चीजें हैं उनको ही बह जाने दीजिए और अपने आप को पकड़ के रखिए। जो ऊपर से पेड़ की बड़ी टहनी नीचे आ रही है उसको पकड़ के आप खड़े रहिए और बाकी सब व्यर्थ की चीजें जो आपके दिमाग में चलती है उसे जाने दीजिए। सबसे पहले अपने आप पे दया दिखाइए। बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ। डोंट बी सो रिजिड ऑन योर सेल्फ। आपकी बातें इतनी रिजिड ना हो आपके लिए दूसरों के ऊपर कि हम अपने आप को ही कड़क कर लें और जैसे ही वो कड़क लकड़ी ऊपर से पेड़ की आती है वो पकड़ते ही टूट जाती है। आपको उस फ्लेक्सिबल टहनी को पकड़ना है जो आपको संभाल ले। हिलते डुलते पानी के प्रेशर से जो आप इधर उधर अपना बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं वो फ्लेक्सिबल टहनी आपको संभाल रही है। और दूसरी टहनी जो कड़क है, सूख गई है, जो रिजिड है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जैसे ही आपने उसको थामा वो टूट के गिर गई और आपका बैलेंस बिगड़ गया। जाने दीजिए जो चीजें आपके जीवन का बैलेंस बिगाड़ती हैं। केवल 3 चीजें मेजरली बाहर निकालनी है जो आपके जीवन का बैलेंस निकालती हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, अपना कुबेर मुद्रा में जाएंगे, सांस को ऊपर खींचेंगे। अब हम उस चीज को पकड़ के रख रहे हैं जिससे हम जीवन में अपना भी भला करेंगे और लोगों का भला करेंगे, लेकिन उससे जुड़ेंगे नहीं। श्री श्री श्रीं 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 श्रीं
Shrim, 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 Helmentillo, 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 Tío, Helmentillo, 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 El mentillo, 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 shrim, 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 shrim. Take a deep breath in. For a while, enjoy the vibrations और आप एक एक अपने सेल को देखेंगे कि वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो रही है, आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है. Yes. If somebody wants to say something, otherwise we are. Yes. Some change, some shift, some new thought. Yes, Anu? Like, I have a question. Like, whenever we're doing the chanting this thing, I always get like sleepy. I don't know, I'm in a different world, like, you know. So why does this happen? Like, This happens because you are getting connected to the different frequency, the subtle world. Definitely, the vibrations are high, and then we go into trance. You feel that you are sleeping, but actually you're not sleeping. You are into trance. yeah, like And from that is like, the time when we are manifesting. Actually, if you are able to reach that trance state, actually that's the time when we are manifesting. yeah, कि because I हमारा- immediately go to sleep. I just put the Tai Chi like music in my ears and I just go to sleep. Like,
It's not sleeping, you go into trance, because if you were sleeping, then things were different. And that's ठीक a है? very good like music. If you allow me to share it, I can share it with other people also. It's Sure, like sure, why not, yeah. है ना? तो ये सारी चीजें मैम आपके लाइफ, हाँ रीमा, जैसे आपने यस रीमा, जैसे आपने बोले पहले तो ठीक जगह, आप पहले बोले पहले रीमा सिट, जी सही जगह बैठा कर। मैम ना मारे थे, जैसे आपने बोला ना वाटरफॉल के नीचे आने के लिए, तो हाँ उस टाइम में मैं फिर पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। जैसे आपने बोला एक पेड़ का टूट गया सूखा वाला, और मेरे को पकड़ने के लिए नहीं, इतना हो रहे थे ना मुझे। अच्छा ठीक है, मैं बात कौन करती सी हूँ। हाँ ओके, एनीथिंग, एनीबडी एल्स? Did you leave anything and did you hold anything? What was that you wanted to hold and what was that you wanted to let go? कुछ हुआ? नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं पकड़ा? Yes, Shyam, you're smiling. Yeah, I'm feeling relaxed, you know. ठीक है, हम कल करेंगे मेजर काम अभी इस पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अलग हैं. वी विल वर्क. अनु, यू कैन आस्क योर कजन टू यू नो, जैसे आई एम इन द ग्रुप. my bhabhi wanted to join the EFT classes. You just ask her. She's in India, right? So I was speaking to her.